Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 2, subject code BP503T, Pharmacology 2. I am Dr. Sardendu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So dear learners, today we are going to discuss the second part of non-steroidal anti-inflammatory agents. In the previous lecture we have discussed about the different NSAIDs which are used in inflammation, pyrexia or algesia. We have a very elaborated discussion over the aspirin, pharmacology of aspirin. Now let's take a look over the learning objectives of this lecture. At the end of this lecture, you people will be able to understand the preferential selective COX-2 inhibitor as well as the COX-3 inhibitors. You are able to explore the pharmacology of selective drugs, and at the last of this you can able to analyze the selection of NSAIDs for different conditions. Now let's start with the preferential COX-2 inhibitor. Now the first drug, the first agent which is come in the category of preferential COX-2 inhibitor is nimesulide. Nimesulide is also known as a weak inhibitor of COX-2. Okay, so what is the meaning of preferential here? It means if the drug have two options to bind with COX-1 and COX-2, so this drug will go to what? COX-2. So this is known as what? Preferential COX-2 inhibitors. They are the weak inhibitor of prostaglandin synthesis, and they have anti-inflammatory exerted, but not by the COX inhibition. They inhibit the free radicals which are generated by the neutrophils. Generally they have ability to inhibit the platelet activating factor. These are the factors which are also come in the category of autocoids. So nimesulide also inhibit the PAF synthesis. Nimesulide have inhibitory action over the MMP, that is metalloproteinase enzyme. Okay? So what is the metalloproteinase enzyme? It is an enzyme which is combined with the proteinase when a metal, especially the zinc, okay, zinc cation when coagulated with the proteinase enzyme, and then it will exert its activity, then this is known as what? Matrix metalloproteinase enzyme. They doesn't cause bronchospasm because some NSAIDs are having a tendency to induce the bronchoconstriction, that may be and this is the reason why they are contraindicated in asthma. But nimesulide is safe for the asthmatic patients, and this is the reason why it is very commonly used as an anti-inflammatory agent for asthmatic patients. Now it is contraindicated in the case of hepatotoxicity, the person having a liver disease, so nimesulide will not be prescribed. Nimesulide, if we talk what is the therapeutic effect, so it is generally used in sport injuries, dental surgeries, ear, nose, throat, or in short ENT disorders, sinusitis, low backache, dysmenorrhea, and postoperative pain. Generally it is available in oral formulation, and the dose is 100 milligram twice a day. Okay, what is sinusitis? Sinusitis is the inflammation of the साइनस ग्लैंड. ठीक है, साइनस ग्लैंड होता है हमारे यहाँ पर, और इसका जब इन्फ्लामेशन होता है देन इट इज नोन एज साइनोसाइटिस. ठीक, डेंटल सर्जरीज में इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड, ऑलरेडी टोल्ड. डिस्मेनोरिया, इट इज द इरेगुलर साइकिल ऑफ, you can say menstruation cycle or the pain during the menstruation. ठीक है ना. Okay, and after the operation it is a very good analgesic used by the surgeons. Now adverse effects, if we talk about what are the adverse effects of the nimesulide, so nimesulide having a tendency to induce epigastric distress. It means it may induce heartburn or the reflux disease, as well as it induces the skin rashes, pruritus, dizziness, somnolence and hepatic failure. One by one we can discuss. Skin rashes कुछ नहीं, मतलब आपके स्किन पे हल्का हल्का रेडनेस आने लगेगा, that means what? Skin rashes. ठीक है. Pruritus is skin disorder where there is eruption of you can say sebaceous gland, and that is known as a pruritus. Dizziness, somnolence means tendency for sleeping. Okay, so somnolence का मतलब क्या हो गया? आपको ज्यादा नींद आने लगेगी, आप थोड़ा से
आपके अंदर हिप्नोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। हेपेटिक फेलियर इसका एक साइड इफेक्ट है। नाउ अगर हम बात कर लें व्हाट इज द जनरली निमोसलाइड इज बैंड, ओके, एंड स्पेशली इफ वी टॉक द स्पेन, आयरलैंड, सिंगापुर, दे बैंड दिस ड्रग in their country for the prescriptions, okay, but in India it is very frequently used. It means that it is banned by the FDA, but clinicians use for sports and dental injuries, okay. It is only indicated, especially if a clinician was prescribing nimesulide, that means it is only indicated in the asthmatic patients where other NSAIDs are contraindicated. It means अगर आपको nimesulide कोई डॉक्टर दे रहा है एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, इट मीन्स कि वो आपको एस्थमेटिक केस में ही इसको कंसिडर करके देगा, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं देगा आपको, जनरल NSAIDs जो है वो यूज करेगा। The second preferential COX-2 inhibitor is meloxicam. It is a congener of piroxicam, very effective in osteoarthritis, rheumatoid arthritis. It has a plasma half-life of 15 to 20 hours, and it is a very long duration. Plasma half-life is very long. That's why meloxicam is prescribed in a single dose for 1 day. Okay, gastric side effects are very little bit, you can say, and the dose which is generally used by the clinician is 7.5 to 15 milligram OD. Okay, now where you can if we can talk about that after preferential COX-2, what is the next agent which we can use. So it is the selective COX-2 inhibitors. Selective COX-2 inhibitors doesn't act on COX-1, ठीक है, यानी कि ये COX-1 पे काम नहीं करते हैं. They have a very high selectivity towards the COX-2 and they have a very restricted therapeutic window. Okay, ये बहुत selected जगह पे यूज किया जाता है. It is not very commonly used in the inflammatory disorders. ठीक, commonly जितने भी सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है उनके लास्ट में अगर आप देखोगे तो क्या आता है, कॉक्सिब्स आता है, ठीक है, यानी लास्ट में अगर कॉक्सिब लगा हुआ है, इट मींस इट इज व्हाट, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर. इट कॉजेज लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन, डोंट डिप्रेस द थ्रोम्बोक्सिन A2, यानी कि ये डिप्रेस नहीं करता थ्रोम्बोक्सिन A2 को. इसका क्या मतलब हो गया कि ये आपके प्लेटलेट एग्रीगेशन के ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता है. इसके अंदर कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी जो है वो नहीं होती है ड्यू टू द रिड्यूस्ड PGI2, ठीक है, और दिस इज द रीजन व्हाई सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैर्वोकॉक्सिब एंड रोफिकॉक्सिब, वेल्डोकॉक्सिब आर you can say have a very less efficacy in the serious patients, ठीक है ना. इनका अगर हम बात कर लें तो वेल्डिकॉक्सिब और रोफिकॉक्सिब ऐसे दो ड्रग्स थे जो आए तो बहुत ही धमाकेदार एंट्री के साथ थे, बट ड्यू टू देयर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, हाँ, इनको मार्केट से FDA ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है. तो प्लीज माइंड दिस पॉइंट. Selective COX-2 inhibitors are generally indicated in the patients who are a very high risk of peptic ulcer or gastric bleeding. इसका मतलब if a person who is suffering from peptic ulcer or you can say gastric bleeding, in that particular patient we do not use common NSAIDs. Okay, in that patient only we can use selective COX-2 inhibitor, यानी कॉक्सिब्स को हम यूज करते हैं. They should be used in lowest dose for shorter duration type. इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलाना है इसको. अगर लॉन्ग टर्म में चलाया तो इट में कॉज सम कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस. ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी कम होना चाहिए और डोज जो है वो भी कम होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है. अवॉइडेड इन द पेशेंट especially who are suffering from ischemic heart disease, cerebrovascular disease and the hypersensitivity reactions. Okay, now अगर हम बात करते हैं तो कॉक्सिब्स जो हैं they are used along with aspirin or some they are not used in combination with the aspirin due to gastroduodenal injury, ठीक है, because aspirin is a potential gastro irritating substance, ठीक है. तो पोटेंशियल गैस्ट्रो इरिटेटिव सब्सटेंस होने की वजह से ये कभी भी हम COX-2 के साथ इसको नहीं यूज करते हैं, ठीक है, अदरवाइज इट मे कॉज द सम सीवियर साइड इफेक्ट्स. नाउ व्हाट इज द फार्माकोलॉजी ऑफ सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर. सो सेलिकॉक्सिब, हम अब कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स जो हैं फेमस उनके बारे में बात कर लेते हैं. तो सेलिकॉक्सिब इज द ड्रग विच एक्सर्ट्स anti-inflammatory property, antipyretic property and analgesic property with less ulcerogenic action, ठीक है, यानी कि ये एक ड्रग ऐसा है जिसका
अल्सरोजेनिक प्रॉपर्टी बहुत कम है, कभी कभी आप कह सकते हो ना के बराबर है, ठीक है। हाँ, इफ यू आर नॉट यूजिंग अलॉन्ग विथ इट एस्प्रिन, ठीक है ना। वेरी इफेक्टिव इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स में गठिया का जो होता है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वहां पे इसको यूज किया जाता है। एंड अगर हम बात करें तो नेप्रोक्सेन और डाइक्लोफेनेक के ऊपर भी ये बहुत ज्यादा अफेक्टिव, मतलब उसको उसके जगह पे इसको यूज किया जा सकता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन रिमेन्स इंटैक्ट इन सेलिकॉक्सिब, इट मीन्स इट डज नॉट इंड्यूस or inhibit the platelet aggregation, ठीक है। absorbed slowly with the plasma protein binding of 97%, and this is the reason इसका हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप देखो तो हाफ लाइफ यहाँ पर 10 आवर्स है, तो वो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज इट हैज अ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ 97%। ये कॉमन कंसेप्ट है, ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग तो उसका हाफ लाइफ भी ज्यादा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन से अगर कोई भी ड्रग बाइंड हो जाता है तो इट मीन्स इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द एक्शन, इट इज stored as a reservoir, and once the plasma concentration of drug falls, it will release from the plasma protein, it break down from the plasma protein and then again maintain the concentration of that drug, ठीक है। Generally they are used in rheumatoid arthritis and osteoarthritis, and the common dose is 100 to 200 milligram twice a day, BD का मतलब twice a day, ठीक है। साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो माइल्ड डायरिया, डिस्पेप्सिया एंड एब्डोमिनल पेन आर वेरी कॉमन एंड वेरी यूजुअल साइड इफेक्ट्स ऑफ द disease, this celecoxib. Now the latest one is the etoricoxib. Etoricoxib is a newer coxib with highest selectivity among all other selective COX-2 inhibitors, ठीक है। It is very effective and very commonly used in the patient who are suffering from osteoarthritis, rheumatoid arthritis and the गाउटी आर्थराइटिस। तीन तरह के आर्थराइटिस हैं यहाँ पर, रूमेटाइड, ऑस्टियो एंड गाउटी, जिसमें हम गाउट और रूमेटाइड आर्थराइटिस को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑस्टियो जो है वो बोन का आर्थराइटिस होता है, इसको आप अभी एक सुपरफिशियल समझ लो। एट्रोकॉक्सिब डजंट affect gastric mucosa, it means it doesn't damage or irritate the gastric mucosa and never induce the platelet aggregation, ठीक है। हाफ लाइफ इसका भी बहुत ज्यादा है, इट इज अराउंड 24 आवर्स, ठीक है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग विल बी अराउंड 99%, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा इसका हाफ लाइफ है। वेरी कॉमनली यूज्ड in the treatment of rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosis spondylitis, dysmenorrhea, acute dental surgery, and the very common prescription contains the formulation in between of 60 to 120 milligram of etoricoxib, that is it comes in the three formulation 60, 90 and 120, and 90 and 120 mg is very commonly used for the treatment. Now come to the last enzyme, which is a newer enzyme and known as COX-3 inhibitor. COX-3 inhibitor you can say it is a constitutive enzyme, मैंने पहले भी बताया, found it brain, aorta, ठीक है। और अगर हम बात कर लें तो ये COX-1 का ही एक एनालॉग है, बट हाइपोथैलेमस में इसको हम COX-3 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको। पैरासीटामोल इज अ ड्रग विच इज एक्शन ओवर द COX-3, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, COX-3 को ब्लॉक करता है, COX-3 के इनहिबिट करता है, और COX-3 को इनहिबिट करके ये जनरली पायरेक्सिया और एल्जेसिया जो है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। पैरासीटामोल यू कैन से हैव अ लेस एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई पैरासीटामोल इज जनरली यूज्ड इन द फीवर एंड द पेन। इट इज मेटाबोलाइज्ड in a compound or metabolite known as what, phenacetin, ठीक है। तो एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है पैरासीटामोल का, याद रखने के लिए फेनासेटिन, ठीक है। फेनासेटिन पहले मार्केट में आता था, एक्टिव मेटाबोलाइट ही आता था फॉर्मुलेशन, ठीक है, बट उसकी कुछ टॉक्सिसिटी थी, स्पेसिफाई कर देता हूं, हेपेटोटॉक्सिक बहुत ज्यादा था वो, इसकी वजह से उसको मार्केट से क्या कर दिया गया, विदड्रॉ कर दिया गया, ठीक है। नाउ कैसे काम करता है, तो ये हाइपोथैलेमस में COX-3 को ब्लॉक कर देता है, और COX-3 को ब्लॉक करने की वजह से जो पेन है, स्पेशली सेंसिटाइजेशन जो हो रहा है, नॉसिसेप्शन हो रहा है वो, प्लस फीवर, इन दोनों को वो इनहिबिट कर देता है। COX-3 जनरली एक्सप्रेस्ड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, थ्रू द mRNA प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। नाउ पैरासीटामोल लैक्स द प्रॉपर्टी टू इनहिबिट द COX-1, ठीक है, ये ध्यान रखना, COX-3 को इनहिबिट कर रहा है, but it doesn't inhibit the COX-1 due to the superoxides present nearby the inflammatory site। यानी कि अब इसको ऐसे समझ लो आप कि पैरासीटामोल
सुपर ऑक्साइड्स या फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में काम नहीं करता है, ठीक है। अगर वहां पर अवेलेबिलिटी है किसकी, सुपर ऑक्साइड्स या फ्री रेडिकल्स की, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। डजंट स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर, जैसे अगर हमने बात किया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, एस्प्रिन इन डिफरेंट डोजेस, लो डोजेस पे वो स्टिमुलेट कर रहा था रेस्पिरेटरी सेंटर को, वेयर एज हाई डोज पे वो क्या कर रहा था, डिप्रेस कर रहा था, ठीक है। नाउ इट डजंट इंड्यूस द गैस्ट्रिक इरिटेशन और यू कैन से म्यूकोशल डैमेज, ठीक, एंड नेवर एक्ट ऑन द प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन के ऊपर भी काम नहीं करता है। जनरली इट हैव नो इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन अलॉन्ग विथ एनी यूरोकोसूरिक ड्रग। यूरोकोसूरिक ड्रग्स वो होते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं टू एलिमिनेट द यूरिक एसिड फ्रॉम द यूरिन, ठीक है, थ्रू द यूरिन, ओके। तो यूरिन के रास्ते जब हम यूरिक एसिड को निकालते हैं, दीज आर द ड्रग्स विच आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन द गाउट, ठीक है। गाउट के अंदर यूज किया जाता है इन ड्रग्स को। नाउ तो इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है उसके साथ। पैरासिटामोल बता दिया मैंने, ये सीएनएस में प्रेजेंट होता है और ये पायरेक्सिया और एल्जेसिया को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। बट इन्फ्लामेशन में इसका जो रोल है वो थोड़ा सा सस्पिशियस है, वो बहुत कम हम कहेंगे कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी को कैरी करता है। क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो इट इज जनरली यूज्ड इन द माइल्ड टू मॉडरेट पेन, स्पेशली द हेडेक एंड द माइग्लिया। माइग्लिया का मतलब होता है मसल पेन, ठीक है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। माइग्लिया का मतलब पेन इन द मसल्स इज नोन एज व्हाट, माइग्लिया, ठीक है। प्रिफर्ड इन द पेशेंट्स हु आर एलर्जिक और सेंसिटिव टू द पेप्टिक अल्सर ड्यू टू एस्प्रिन, ठीक है। तो यानी अगर हमको पेन किलर लेना है या एंटीपायरेटिक लेना है तो हम एस्प्रिन को ना यूज करके क्या यूज कर सकते हैं, पैरासिटामोल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं कॉज करता है, इट इज सेफ इन द स्पेशली इन द पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो पैरासिटामोल इज ए वेरी गुड सब्स्टिट्यूएंट फॉर द एस्प्रिन, स्पेशली इन द चिल्ड्रंस हु आर बिलो 12 ईयर, ठीक है। यानी 12 साल से कम के बच्चों को हम पैरासिटामोल नहीं देते हैं, एंड हमने उसके बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ड्यू टू द रेस सिंड्रोम, ठीक है। रेस सिंड्रोम की वजह से हम इसको नहीं देते हैं, ठीक है। एस्प्रिन का एक बहुत स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है रेस सिंड्रोम व्हेन इट इज गिवन चिल्ड्रन हु इज लेस देन 12 ईयर ऑफ एज, ठीक है। थेरेपेटिक डोज की बात करें तो 500 मिलीग्राम जो डोज है वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड डोज है, बट ये 625 में भी आता है और आगे 1000 मिलीग्राम में भी आता है। ये अगर आप 500 मिलीग्राम यूज कर रहे हैं तो आपको थ्राइस अ डे देना होता है, ठीक है, दिन में 3 बार डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। नाउ व्हाट इज द काइनेटिक्स ऑफ द पैरासिटामोल, इट इज वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, ठीक है, यानी कि ये ओरल रूट से बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। प्रोटीन बाइंडिंग 1/4 है, यानी कि अगर हम बात करें तो इट हैविंग अ प्रोटीन बाइंडिंग अराउंड 25 to 30%, ठीक है। नाउ अब इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय phase 2 enzymes, especially glucuronide conjugation and the sulfate conjugation, and half life is around 2 to 3 hour because इसका प्रोटीन बाइंडिंग क्या कम था, ठीक है। तो कम होने की वजह से हाफ लाइफ भी इसकी कम हो गई। साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो जनरली एट थेरेपेटिक डोज इट इज सेफ एंड वेल टॉलरेटेड, ठीक है। अगर आप 500 मिलीग्राम तक यूज कर रहे हो पैरासिटामोल थ्राइस अ डे तो इट इज सेफ, नहीं इशू होगा। बट समटाइम्स नोजिया और स्किन रैशेज आर सीन इन सम पेशेंट्स, ठीक है, हु आर यू कैन से हाइपर सेंसिटिव और एलर्जिक टू द पैरासिटामोल, ठीक है, या इट्स मेटाबोलाइट, ठीक। इट इंक्रीजेज द हेपेटिक एंजाइम लेवल, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर आपने 1 महीने तक लगातार पैरासिटामोल खा लिया और आपने फिर उसके बाद अपना लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया तो व्हाट विल यू गेट, दैट देयर इज एलिवेशन इन द हेपेटिक एंजाइम। स्पेशली कौन सा एंजाइम होता है हेपेटिक में, तो हम बात कर लें तो यहाँ पर होता है SGOT एंड SGPT, ठीक है ना। ये 2 तरह के एंजाइम है, ये हमारे लीवर एंजाइम्स की तरह जाने जाते हैं और इनका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा अगर हमने एक्सेसिव पैरासिटामोल यूज कर लिया। नाउ कम टू द एक्यूट पैरासिटामोल पॉइजनिंग, व्हाट इज इट, ठीक है। ज्यादा दिन तक आपने यूज कर लिया तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू सफर फ्रॉम पैरासिटामोल पॉइजनिंग। So acute toxicity due to the PCM can occur especially in the children due to the low glucuronide conjugation compared to the adults, because children have a less developed liver, that's why जो metabolism होना है, the place where the metabolism occurs, ठीक है ना, there especially in the children there is a poisoning which is known as what, paracetamol poisoning. सिम्टम्स की बात करें, व्हाट आर द सिम्टम्स, तो नोजिया, वोमिटिंग, लिवर टेंडरनेस
abdominal pain, hepatic and renal necrosis, and sometimes jaundice is also observed during the paracetamol poisoning. What is the mechanism of toxicity? जनरली साइटोक्रोम P450, ठीक है, ये फेज 1 का एंजाइम है, मैक्रोजोमल एंजाइम है जो कि मैक्सिमम ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है, ठीक है। तो व्हेन CYP450 मेटाबोलाइजेज द PCM, ठीक है, यानी कि अब PCM का मेटाबॉलिज्म दो तरह से हो रहा है, ठीक है, ये PCM है, ठीक, तो एक फेज 1 के थ्रू हो रहा है, ठीक, और एक हो रहा है फेज 2 से। यहां पर ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन कर रहा था और यहां पर CYP450, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये जो है ये बहुत कम कंसंट्रेशन में मेटाबोलाइज करता है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में कौन मेटाबोलाइज करता है? फेज 2 एंजाइम्स यानी ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेट्स, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, जब ये माइनर क्वांटिटी में उसको मेटाबोलाइज करता है तो इसकी वजह से जो मेटाबोलाइट बनता है फेज 1 रिएक्शन की वजह से, दैट मेटाबोलाइज इज नोन एज व्हाट? एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन इमीन, ठीक है, ये रहा NABQI, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द पैरासिटामोल पॉइजनिंग, यानी कि वंस when PCM is metabolized by phase 1 enzyme CYP450, it forms NABQI, N-acetyl benzoquinone imine, ठीक है, और दिस इज अ वेरी टॉक्सिक कंपाउंड, ठीक है। जनरली इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे बॉडी में ग्लूटाथियोन्स होते हैं विच आर एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। बट जब ये ज्यादा बनने लगेगा, ठीक है, यानी कि ज्यादा पैरासिटामोल खाए तो ज्यादा मेटाबॉलिज्म, एंड जब ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा तो इसकी वजह से what you will observe? Paracetamol poisoning, ठीक है ना। Now excessive NABQI will lead to the कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ प्रोटीन्स इन द लीवर सेल, ठीक है। और एक बार अगर ये कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई किसकी? NABQI और हेपेटोसाइट्स की, ठीक है, तो इनकी वजह से हमारे को नेक्रोसिस देखने को मिलता है लीवर में, विच में लीड टू द सीवियर इश्यूज, ठीक है। स्पेशली द पेशेंट हु आर वेरी फ्रिक्वेंटली दे आर कंज्यूमिंग अल्कोहल्स, ठीक है ना। 5 ग्राम ऑफ PCM इन 1 डे में कॉज द हेपेटोटॉक्सिसिटी, यानी कि अगर अल्कोहलिक्स हैं और अगर वो एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा PCM कंज्यूम कर लेते हैं तो इट में कॉज द हेपेटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू द CYP2E1 एक्टिवेशन। PCM is contraindicated in premature infants, especially the children who are less than 2 kg, ठीक है, इनमें हेपेटोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। अब व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर द पॉइजनिंग, पैरासिटामोल पॉइजनिंग? तो जनरली गैस्ट्रिक लीवेज करते हैं, यानी कि हम नमक पानी, सलाइन, एक्सेसिव सॉल्ट पानी में मिलाकर देते हैं जिसकी वजह से वो वोमिट आउट कर देता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वी कैन गिव द एक्टिवेटेड चारकोल विच हैज अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब, याद रखना AD, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन, सरफेस फिनोमेना है, तो इसको भी हम देते हैं, इट विल एक्ट वेरी मतलब गुड, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीडोट की अगर बात करें तो N-acetyl सिस्टीन इज द एंटीडोट फॉर द पैरासिटामोल पॉइजनिंग, ठीक है। डोज इसका है 150 मिलीग्राम पर kg एंड इट इज यूज्ड थ्रू IV रूट। 200 ml में हम इसको इन्फ्यूज कर देते हैं अलॉन्ग विथ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन ओवर 15 मिनट, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको हम 20 आवर तक सेम डोज पर चलाते रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ओरल रूट से देना चाहते हो N-acetyl सिस्टीन तो 75 मिलीग्राम पर kg दिया जाता है 4 to 6 आवर फॉर 2 to 3 डेज एंड इट replenishes the level of glutathione in the liver, ठीक है, यानी एक बार ग्लूटाथियोन दोबारा फिर से आ गया N-acetyl सिस्टीन की वजह से तो NABQI का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टॉपिकल NSAIDs की अगर बात कर लें तो ये वो NSAIDs हैं जो कि हम टॉपिकल डिसऑर्डर्स या डिजीज के लिए यूज करते हैं। वेरी कॉमनली टॉपिकल जेल इज फॉर्मुलेशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट सच एज वॉलिनी और डाइक्लोफेनेक जेल, ठीक है ना। नाउ इफेक्टिव इन मसल पेन एज वेल एज द जॉइंट पेन। Why they are used on topical routes? Because they attain the high level at the site of concentration of drug at the site of injury or the trauma, ठीक है, and due to this it reduces the systemic adverse effect, यानी जो साइड इफेक्ट हो रहे थे, ठीक है ना, ओरल रूट से, उनको हम मिनिमाइज करने के लिए इसको क्या करते हैं? टॉपिकल रूट से लेते हैं और ये उस पर्टिकुलर साइट पे ही अपना एक्शन देता है, क्योंकि पेन आपको जहां हो रहा होगा आप वहीं पर उसको लगाओगे एंड इट विल रिड्यूस द पेन एट दैट पर्टिकुलर साइट बिकॉज वहीं पर कॉक्स का जो एक्शन है वो प्रोमिनेंट होता है। कंपेयर टू द ओरल NSAIDs, टॉपिकल NSAIDs ब्लड लेवल इज लो, जाहिर सी बात है सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम जाएगा क्योंकि ये लोकलाइज्ड इफेक्ट देता है अपना, ठीक है। नाउ जनरली इट इज यूज्ड टू ट्रीट द ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में या फिर स्पोर्ट्स इंजरी हो गई या फिर स्प्रेन हो गया, खिंचाव हो गया मसल्स का, बैकएक हो या स्पॉन्डिलाइटिस हो,
इन सारे अलाइनमेंट्स में हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं टॉपिकल जेल्स या फिर टॉपिकल एनएसएड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत कॉमनली यूज होने वाला जो जेल है दैट इज द डाइक्लोफेनेक जेल 1%, वोलिनी मार्केट में आता है। ब्रुफेन का जेल भी आता है 10%, कीटोप्रोफेन का जेल आता है 2.5% एंड निमोसलाइड का भी जेल आता है मार्केट में विच कंसिस्ट ऑफ 1% ऑफ निमोसलाइड इन दैट पर्टिकुलर जेल, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमने इतने सारे एनएसएड्स पढ़ लिए, सो हाउ वी कैन सेलेक्ट व्हाट एनएसएड वी कैन यूज इन व्हाट टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है ना। ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा इशू होता है, ठीक है। तो जनरली चॉइस ऑफ एनएसएड्स में अगर हम बात करें तो जनरली इट इज डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। पहले स्पेक्ट्रम ऑफ पेन, आइदर द पेन इज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, लेवल ऑफ द पेन, ठीक है। एज ऑफ पेशेंट क्या है, अगर वो बच्चा है या फिर ओल्ड एज है तो उसमें हम वो ड्रग नहीं यूज करेंगे जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या फिर हेपेटोटॉक्सिटी या रीनल टॉक्सिटी कॉज कर सकता है। हम देखते हैं अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, एनएसएड्स को बहुत सेलेक्टिवली चलाते हैं, ठीक है। कोमॉर्बिडिटी जिसको कह देते हैं, प्री मेडिकेशन हिस्ट्री जरूर लेते हैं इफ सम पेशेंट हैव अ एलर्जिक और हाइपरसेंसिटिविटी विद सम पर्टिकुलर ड्रग सच एज पैरासिटामोल और एस्प्रिन, ठीक है, या फिर और कुछ भी, ठीक है। तो वहां पर हम उस ड्रग को वहां नहीं चलाएंगे एंड हिस्ट्री ऑफ एलर्जी जो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ठीक है। नाउ ये दो क्राइटेरियाज हैं जिसपे हम प्रिस्क्राइब करते हैं एनएसएड्स को। जनरली क्लिनिशियंस जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन यू कैन यूज पैरासिटामोल और द लो डोज ऑफ ब्रुफेन, यानी अगर आपको माइल्ड से मॉडरेट पेन है विथ लिटिल इन्फ्लामेशन तो गो विथ पैरासिटामोल, पैरासिटामोल इज द सेफेस्ट वन, ठीक है। और आइदर यू कैन गो विद द लो डोज ऑफ ब्रुफेन। अगर हम बात करें पोस्ट ऑपरेटिव पेन का, अगर एक बार आपकी सर्जरी हुई एंड आफ्टर सर्जरी यू हैव अ फीलिंग ऑफ, बिकॉज ड्यूरिंग द सर्जरी यू हैव द एनेस्थीसिया, दैट्स व्हाई यू आर नॉट फीलिंग द पेन, बट वंस द ऑपरेशन वाज डन एंड यू आर आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर यू कैन फील द पेन, ठीक है ना। फॉर दैट इंजेक्शन केटरोलैक और डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन इज वेरी कॉमनली यूज्ड, ठीक है। नाउ पेरेंटल एनेस्थेटिक्स जनरली आर यूज्ड इन द पेशेंट who are suffering from renal colic, ठीक है, या फिर acute gout, dental pain, fracture या फिर ट्रॉमा, ठीक है। तो उनमें हम जो जनरली ड्रग यूज करते हैं दे आर कैटरोलैक, डाइक्लोफेनेक एंड पेरिकॉक्सिब, ठीक है। और इसको जनरली देने का जो रूट है वो इंट्रामस्कुलर है या फिर इंट्रावेनस है। इन मॉडरेट टू सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, acute gout, acute rheumatic fever, the choice of drug is naproxen, piroxicam, indomethacin and aspirin, especially at high doses of aspirin are effective during in this type of diseases, ठीक है। अगर गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस है, इफ सम पेशेंट हैविंग अ गैस्ट्रिक ब्लीडिंग और पेप्टिक अल्सर और हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर यूज करते हैं या फिर पैरासिटामोल यूज करते हैं। आर्थराइटिस का पेशेंट है वहां पर हम डिपेंडिंग अगर अलॉन्ग विथ पेप्टिक अल्सर का भी केस है उसमें, तो वहां पर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर साथ में लगा देते हैं एनएसएड्स के, जैसे पेंटाप्राजोल, ठीक है। एस्थमेटिक या एलर्जिक है अगर कोई पेशेंट जो एस्प्रिन से, तो निमोसलाइड इज चॉइस ऑफ ड्रग अलॉन्ग विद द कॉक्स2 इनहिबिटर्स, ठीक है। इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स एंड द स्ट्रोक पेशेंट्स we can avoid the use of COX-2 inhibitor because they have a cardiovascular issues, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं या फिर एस्प्रिन को हम लो डोज में यूज कर सकते हैं। बच्चों में अगर हम बात करें पीडियाट्रिक केसेस में ओनली पीसीएम, ब्रुफेन, नेप्रोक्सेन, एस्प्रिन इज यूज्ड, बट एस्प्रिन इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। तो इसको भी मैं रूल आउट कर देता हूं, ठीक है। बस हम 3 ड्रग्स दे सकते हैं। एल्डरली पेशेंट में हम जो भी ड्रग दें उसका डोज जो है वो टैपर करें, लो रखें, ठीक है ना। फास्ट एक्टिंग एनेसेड में अगर हम बात करें, स्पेशली जो हम यूज करते हैं फीवर, हेडेक और शॉर्ट एक्टिंग पेन में, तो वहां हम पैरासिटामोल यूज करते हैं। प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल इज द सेफेस्ट, लो डोज ऑफ एस्प्रिन इज ऑल्सो सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग, बट यहां हम एस्प्रिन को फिर से रूल आउट कर देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे ना यूज करें, ठीक है। डायबिटिक, इस्केमिक हार्ट डिजीज या फिर एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं, तो वहां पर हम जो यूज करते हैं जो मतलब एनेसेड्स, उनको इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि वो जो उनकी थेरेपी चल रही है उससे ड्रग इंटरेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो वो चीज हमारा चॉइस रखना होता है, ठीक है। एंड नाउ दीज आर द रेफरेंसेस फ्रॉम यू विच यू कैन एलोबरेट योर स्टडी, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर योर